ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل لداخ کے اہتمام سے کھیلو انڈیا میگا سپورٹس ایونٹ کے تحت 5 روزہ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کا فائنل مقابلہ آج متحری کیمپس کربتھنگ کرگل میں کھیلا گیا۔ اس موقع پر سجاد حسین، پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کرگل برو بطور مہمان خصوصی کے علاوہ دیگر مہمان بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ اس ٹورنامنٹ کے فائنل تقریب میں متحری اسکول کے مختلف شاخوں کے اساتذہ اور طلباء کے علاوہ دیگر عملے بھی موجود رہے۔ پروگرام کے آخر میں مہمان خصوصی نے اس ٹورنامنٹ کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کی۔ پیش ہے ہمارے نمائندہ حسنین عبادی کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ تو بہت ہی مزہ آیا یہاں پر جو ایونٹ دیکھا ہم نے، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی سپورٹ ایونٹس میں آپ لوگوں نے حصہ لیا اس میں آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ تو میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، صرف آپ پیارے بچوں سے میں مخاطب ہونا چاہوں گا۔ تو جب سے یہاں پر انٹر متحری اسکول سپورٹ ایونٹ شروع ہوا تو شاید آپ لوگوں نے اپنے اسکولوں میں اس میچ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پریکٹس کی ہوگی، وہاں پہ پلیئرز کا سلیکشن کیا ہوگا۔ تو اس پریکٹس کے دوران آپ بچوں نے جب پریکٹس کیا ہوگا تو آپ سپورٹس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہوں گے، اور اسی رولز اینڈ ریگولیشنز اور پرنسپلز کے حساب سے آپ نے پریکٹس کیا۔ جو ونر رہے ہیں that is UCMPS گروتھنگ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سچا سر۔ اس کے بعد جو ونر رہے ہیں اس میں والی بال میں وہ UCMPS برو، ہمارے کشمیر سے اپنا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ کی جانکاری کے لیے کہنا چاہتا ہوں، فٹ انڈیا کھیلو انڈیا کے تحت ایک بہت ہی گورنمنٹ کی طرف سے بہترین انیشیٹو لیا گیا۔ تو اس پروگرام کے تحت بچوں کے اندر اسپورٹس مین شپ کا ایک اچھا، یعنی کہ یہ جو ایک قسم کی عادت جو ہے اور ایک قسم کی ان کی پرسنالٹی کو یعنی گروم اپ کرنے کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا۔ تو متحری ایجوکیشنل سوسائٹی پیچھے نہ رہتے ہوئے بلکہ تمام پرائیویٹ سکولز میں سب سے پہلے یہ ایونٹ ہم نے یہاں پہ آرگنائز کیا، اور رائٹ فرام 18 مئی اپ ٹو آج کے دن تک ہم نے مطلب 5 دن کے لیے پورا اس یعنی کہ میگا ایونٹ کو ہم نے آرگنائز کیا۔ اور پارٹیسپیشن تو یعنی تمام ہمارے 15 برانچز ہیں، ان سب کو کرانی تھی، لیکن ایج گروپ ہمارے فیکٹر تھا، ایک فیکٹر ایسا تھا کہ جو بچوں کو کیونکہ پرائمری سیکشن میں بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو یہاں پر بلانا جو ہے وہ تھوڑا مشکل تھا، یہاں پہ ہیڈ کوارٹر پہ بلانا مشکل تھا۔ تو ان میں سے ہم کچھ ہائی سکولز یعنی یہاں
कुरबथंग यानी MPS हाई स्कूल और बरू MPS हाई स्कूल यानी कि मेन ये था, और प्राइमरी डिपार्टमेंट यानी और बाकी द्रास शुस्कोर यानी इन स्कूलों को हमने बुला के यहाँ पे इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके बच्चों के अंदर एक सपोर्ट्समैनशिप इनकलकेट करने की कोशिश की थी। सर जी, आने वाले दिनों में बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे तो कुछ बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जहाँ बात है वो बिल्कुल ही यानी कि ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस में एक किस्म का एक इंस्पायर जो होता है प्रैक्टिस करने के लिए वो पार्टिसिपेशन से होता है। जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ आपको अंदाज़ा लग जाता है कि हमें क्या करना है इस इवेंट में अपना नाम करने के लिए, यानी कुछ अपने लिए यानी जीत के लाने के लिए क्या करना है, आइडिया आ जाता है। यह आइडिया इंसान के अंदर यानी बिल्कुल ऑटोमेटेड एक यानी कुदरत का दिया हुआ यानी अल्लाह का दिया हुआ एक नियामत है ये। तो ये तब पता चलता है जब इंसान पार्टिसिपेट करे। बस इसी फार्मूला को लेकर हम चल रहे हैं और ये बिल्कुल इनिशिएटिव है, और आगे हम न सिर्फ यानी स्पोर्ट्स के इवेंट्स बल्कि यहाँ पे स्काउट के भी हम यानी स्काउट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को टीन एज में बिल्कुल यंग एज में सर्विसेज के लिए तैयार करते हैं, पब्लिक सर्विसेज के लिए। जब भी कोई यानी इवेंचुअलिटीज़ होता है उसके लिए, वॉलंटियरिज्म के लिए, जो कि हमारे मुल्क के लिए की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और फ्यूचरिस्टिक है ये सब कुछ। तो इनके लिए भी हमारा मतलब ख्याल है, हम सोच रहे हैं, हमारे आगे के प्लान है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही ये तो एक क्रूशल यानी एक मसला है, एक ऐसा यानी ये है कि इनके साथ इन्हीं चीज़ों के साथ कैसे हम टैकल करें। सबसे बड़ी बात जो है वो अवेयर होना चाहिए इस वक्त, जहाँ तक हो सके कि माँ बाप यंग हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ज़्यादातर तालीम याफ्ता है, लेकिन उनके तालीम याफ्ता होने का फ़ायदा तब है जब वो अवेयर हो अच्छी तरह से। अवेयर का मतलब ये कि पर्सनैलिटी ग्रोथ, एक देखिए माइंडसेट होता है, माइंडसेट दो किस्म का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि देखिए आपको ग्रोथ माइंडसेट कुदरत से अपने लिए एक सबक ले लेते हैं। कुदरत में किसी चीज़ की जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ इफ़ देयर इज़ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल every organism is यानी कि can grow and is liable to develop, यानी उनको डेवलप होने का बिल्कुल यानी उनके अंदर चांसेस है। यही इंसान के ऊपर भी है। इंसान के बच्चे के लिए ग्रोथ होने के लिए 3 फैक्टर को लेना बहुत ज़रूरी है। एक या फिजिकल, दूसरा मेंटल और तीसरा सोशल। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सबक के नाम पर बच्चों के माइंड पे प्रेशराइज तो करते हैं, लेकिन इनके मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को ख्याल नहीं रखते। इसलिए इस भूल और चूक की वजह से टीन एज में हम अपने बच्चों को अपने हाथ से खो देते हैं, और उनको एक अच्छे ऑल राउंड डेवलपमेंट में लगाने के लिए, एक ऑल राउंड डेवलपमेंटल प्रोसेस में उस यानी हाईवे पे दौड़ाने के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स, बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स देखिए खुद ये एक नेचुरल होता है। अगर बच्चा जो है वो जो ही माँ की गोद से यानी आप देखिए माँ की गोद से फारिग होने लगता है कि दूध पीने के बाद वो जल्द ही जल्द उड़ के दौड़ने लगता है। वो दौड़ना बहुत पसंद करता है, वो चढ़ना पसंद करता है, वो चढ़ के गिरना पसंद करता है, चोट खाना पसंद करता है। ये तमाम चीज़ें यानी वो देखता नहीं है कि किसी चीज़ से आपको चोट लग सकता है, नहीं। तो ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ सबक है। अब हमें भी उसी से ये लेकर देखेंगे, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके यानी कि उनके लिए ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ये एक प्रेरणा यानी कि रोल मॉडल है इनके लिए। पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स खुदा के लिए, कि बच्चों को ग्रो होने दो, बच्चों को एक फिक्स्ड माइंड की तरफ ना दो, उन पे प्रेशराइज ना करें, उनको खूब खेलने दें, खूब खेलने दें। बस सिर्फ उनको इतना बता दें खेलते वक्त यानी एक दूसरे से
तहजीब का लिहाज रखा करें, यानी बदजुबानी ना किया करें। बस इतनी सी बात आप कह दें। और अगर इनको पढ़ाना है तो आप एक बच्चे के लिए 4 आवर्स काफ़ी है पढ़ाने के लिए बस, और वो आपके टीचरी की ज़रूरत नहीं है। वो जो स्कूल में ये लोग पकते हैं वही काफ़ी है। ये लोग, मैं बिल्कुल वसूख के साथ, मैं टीचर हूँ, मैं वसूख के साथ कहता हूँ, ये पक रहे हैं। ये इन बेचारों के वो जो टेंडर माइंड्स के ऊपर, यानी इनके जो नाजुक यानी दिमाग के ऊपर प्रेशर जो आ रहा है स्कूल में वही काफ़ी है। घर में आप एक दोस्ताना माहौल यानी क्रिएट कीजिए, खुद को बदलिए, आपके बच्चे डेफिनेटली एंड गारंटीली बदल जाएगा। अगर आप किसी बुरी आदत का शिकार हो तो कम से कम बच्चों के सामने यानी कि वो बुरी आदत जो है पेश न करें। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करें कि आप स्मोकर हो तो आप स्मोकिंग न करें, और दूसरे बुरी आदतें आपका होंगे तो वो इवन कि आप टांग फैलाकर उस बच्चे के सामने न बैठिए। जो ही बच्चे से मिले तो उनको कीजिए कि आप चाहे पढ़ना आपको आता हो या ना आता हो, यानी मैं आपके होमवर्क में मदद करूंगा, ज़रा आके हम मिलके हम होमवर्क करेंगे। ये कहिए, ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा हौसला अफजाई है। और इसके बाद आप कहिए, ये होमवर्क कंप्लीट होने के बाद इनके पास कुछ नहीं बचता, इनके पास सिर्फ एक चीज़ बचता है कि फिजिकल एक्टिविटी। इसके लिए इनको फ्री छोड़िए। अब देखिए फिर इसके बाद रिजल्ट क्या आता है। आपको ऑल राउंड वेल डेवलप्ड यूथ आपके हाथ में आएगा। वरना तो बहुत मुश्किल है इस प्रेशराइज दौर में कि आप इनके टेंडर एज में तो इन पे प्रेशराइज करके इनसे आप यानी सर्कस का वो जो यानी करतब दिखाने वाले जानवर की तरह आप उनको सुधा तो सकते हैं, लेकिन कल जब इनके पास अपना एक यानी कि माइंडसेट बन चुका होगा उस वक़्त आपके मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।